नमस्कार दर्शकों, मैं कुरेसुन्या। आज हम हैं पदी लायंग मेमोरियल स्कूल पर और आज यहाँ पर वन डे अवेयरनेस कम वर्कशॉप ऑन जूनियर रोबोटिक्स एंड बेसिक एआई यहाँ सिखाया जाएगा अपातनी कैरियर गाइडेंस फोरम के द्वारा और इन कोलैबोरेशन विद जेंट्रा एंड प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन 0 यूनिट। और यहाँ पर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारा बच्चे यहाँ आएंगे एआई को सीखने के लिए। तो चलिए आपको हम और डिटेल में दिखाते हैं कि एआई को लेकर क्या क्या आपको बताते हैं। तो इसी तरह एपी तारिक के साथ बने रहें। Before that, we have to know how these things are moving, right? How our muscles are moving, how our tendons are moving. But this is a simple mechanical hand standing. Okay, this is called a line follower robot. So basically, if we follow the line, I think you have already seen the sensors. Device, next. Yeah, next once more. Yeah, this locomotion device. Giving my locomotion. What is a locomotive? A device that what brings you from point A to point B, right? Simple enough. Okay, it's simple ABC. Okay, so what does locomotion mean? How it's coming out. Next slide, please. There's the N effector. The N effector is located at the free end of the robot's manipulator. So we are also developing this. This is called the hand effector. So you can see these motors are called servo motors. Okay, so we can install some cameras to detect. I have already said to you. So and we are trying to move it movable. So it will go automatically to your horticulture, kiwi garden, to plow our fields. Then came our tractors and all. So we are evolving. After industrial revolution, we have been evolving. So this is a change. This is I think we have to accept the fact this is coming. Actually, this is coming. We cannot stop as an individual because if you are thinking that okay, I should not use AI, but you will see the rest of you are already using AI. Okay, so because there will be some people who will misuse the AI. Okay, there will be people who will be misusing their data, personal data, right? So those are the ethical concerns, and definitely people are working on it. So in China during the COVID time, there was huge lot of surveillance cameras were installed in every nook and corner of their cities, right? There was some concern of the citizens of China. Why so much of camera being installed right now? So during the COVID time, so there was an issue of surveillance also. That is also one concern. Because November 2022, It came like a storm. I think many of you heard about ChatGPT and all, right? Okay. So those moments where it gave us a boost, start thinking. तो सर आज आप यहाँ पे जो बच्चों को जो आपने जो पीपीटी प्रेजेंट किया है जो एआई को लेके जो अपातनी कैरियर गाइडेंस का साथ आप लोग कोलैबोरेट करके कर रहे हैं उनका बारे में थोड़ा सा समराइज़ कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए कि आप लोग ने कौन सा बेसिस में पीपीटी प्रेजेंट किया है। Thank you very much. Myself, Dr. Noyan Busumedri. I'm the founder director of Jontro. They're the first robotics AI startup in Northeast. Basically a tech company, and we have been recognized by Assam startup. So basically हमारा मेन मोटो जो था जो AI आजकल आप लोग सुन रहे हैं मीडिया में या कहीं पे भी आप जाइए AI का जो भी है तो AI आपको आफ्टर 2022 इट हैज़ टेकन बाय स्टॉर्म। बहुत सारा आपको दिखाई देगा जो AI का एप्लीकेशंस या AI में जो आ रहा है। सो हमें ये था कि हम नॉर्थ ईस्ट में वो AI इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए और हमारा जो फ्यूचर है जो स्टूडेंट्स के लिए, सो हमारा ये टारगेट था कि हम सारे जाके AI के बारे में उसका अवेयरनेस और एक्सपोजर दे बच्चों के लिए। सो हमारा आज का जो टारगेट है AI का यही था कि हम बेसिक्स जो है एटलीस्ट फंडामेंटल्स ऑफ AI जो हम आज प्रेजेंट किए हैं। सो AI हमें एजुकेशन में कैसे होगा, AI एग्रीकल्चर में कैसे होगा, तो फ्यूचर में हमें AI को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो इट्स अप टू द न्यू जनरेशन। तो हमें वो रास्ता दिखाने के लिए आज ये जो वन डे वर्कशॉप का अवेयरनेस प्रोग्राम है सो वो इसलिए कंडक्ट किया गया इन कोलैबोरेशन विद AGCF। सो हमारा यही टारगेट था कि जे अगर आप आज हम जो ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं अवेयरनेस और जो AI इकोसिस्टम पूरा नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए, ताकि कल को हमारा यहाँ से एक स्टूडेंट निकले जो AI का एप्लीकेशंस डेवलप कर लेंगे फॉर देयर ओन सोसाइटी, फॉर देयर ओन स्टेट। तो हमारे पास AI का यूसेज ये होगा कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का जो प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एनवायरनमेंट हो या कोई भी आपका कोई भी डोमेन सेक्टर्स है, सो उसके लिए हमारे जो प्रॉब्लम्स उसको हम कैसे उसको और बेहतर तरीके से हम AI को यूज़ करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा टारगेट था आज के प्रोग्राम का। और AI फ्यूचर में हम लोग सोच रहे हैं
कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के उसको हम ये कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, ये आप लोग का एआई का जो प्रोग्राम रखा गया है आज, ये आप लोग अरुणाचल में फर्स्ट ईयर सेकेंड? यस, वी आर वेरी थैंकफुल टू AGCF, और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है अरुणाचल प्रदेश में एंड फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट। और जंत्र का यही मोटिव है कि हर एक स्टेट में जाके हम ये अवेयरनेस कैंप करें, बच्चों को अवेयर करें, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर है। और हम लोग उसको अगर अच्छे से उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं तो ये प्रॉपरली, और हमारा जो टारगेट है रेस्पॉन्सिबल यूसेज ऑफ AI, तो AI का नेगेटिव एस्पेक्ट भी रहेगा हमेशा। सो AI को कैसे हम लोग रेस्पॉन्सिबली यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत लकी है हम लोग कि इन कोलैबोरेशन विद AGCF दिस इज़ द फर्स्ट टाइम प्रोग्राम हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो पहला प्रोग्राम है 1 डे वर्कशॉप कम अवेयरनेस कैंप। थैंक यू सर। तो सर, आज आप लोग का यह जो अपतनी करियर गाइडेंस फोरम में आप लोग का जो 1 डे वर्कशॉप था, इसमें आप लोग ने एआई को क्यों सेलेक्ट किया? इसका उसको सेलेक्ट करने का मोटिव क्या था, उसको यहाँ बुलाने का? थैंक यू सो मच ऑल द मीडिया हाउसेस, यहाँ में बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए। जो आपने सवाल पूछा है, ये अभी हर किसी यंगस्टर्स का दिमाग में चल रहा है, ये एआई क्या है, एआई क्यों, ये कैसा है एआई। तो मेन हमारा ये इसको चूज़ करने का प्राइमरी जो है वो इसीलिए चूज़ किया क्योंकि ये अभी सबसे हैपनिंग फील्ड है। और ये ऐसा है कि ये इतना नया भी नहीं है, एक्चुअली 1950s से चलते हुए आ रहा है अभी। लेकिन जैसा बसुमतारी सर ने बताया, एज हमारा कंप्यूटिंग पावर जो इंक्रीज़ हो रहा है, तभी हम अभी एआई का कैपेबिलिटीज़ दिखाई दे रहा है। तो मोस्टली अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो जनरेटिव एआईज देख रहे हैं। इमेज जनरेट करता है, साउंड, अभी सॉन्ग्स भी बनाता है, दोज आर जनरेटिव एआईज। एआई जो है बहुत बड़ा फील्ड है ये। तो हमें ये चूज़ करने में थोड़ा सा भी हिचकी नहीं हुआ कि ये इसको हम लोग फॉलो अप करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारा यंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास में ये एक करियर चॉइस के हिसाब से भी आ सकता है। और अगर इसको अभी से उन लोग एक्सपोजर थोड़ा सा मिले, सवाल निकले दिमाग में, देन ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए हमने अपतनी करियर गाइडेंस फोरम ने ये टॉपिक को पिकअप किया, और बसुमतारी सर का भी सपोर्ट है। अदरवाइज हम लोग वी कैन से वी आर एमेचर्स, बट ही इज़ अ PhD। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला जो हमारे अपतनी बच्चों को, यंगस्टर्स को थोड़ा सा ये फील्ड को इंट्रोड्यूस कर सके। तो यही है इंटेंशन हमारा। तो सर, आज यहाँ पे कितना स्कूल यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है, एंड साथ ही साथ जो बच्चा अगर इंटरेस्टेड है, अगर वो फ्यूचर में जाके, नियर फ्यूचर में जाके ये करियर में खुद का करियर बिल्ड करना चाहता है, तो उसमें आप लोग का पता नहीं करियर का साइड से कुछ उन लोग को हेल्प मिलेगा? ऑफ कोर्स, अभी क्योंकि ये जैसा अभी हमने बताया, ये अरुणाचल में फ़र्स्ट टाइम है जो ये रोबोटिक्स और एआई में कुछ ऐसा एक सेशन हुआ है। सो अभी ये पहला कदम है। तो ऑफ कोर्स इसको अभी हम प्लान आउट कर रहे हैं, और बेशक जो अगर बच्चा इंटरेस्टेड होगा, हमारे तरफ से, जो ACGF की तरफ से, हम हमेशा हेल्पिंग हैंड हमारा साथ में रहेगा। और जो भी कुछ प्रोग्राम्स और प्लान्स हमारा आगे आएगा, वी विल लेट यू नो। सर, कितना स्कूल यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया गया है? हाँ, यहाँ पे अराउंड प्राइवेट स्कूल्स बोलने से अराउंड 19 स्कूल्स का स्टूडेंट्स आया है। और क्योंकि ये समय भी थोड़ा सा बहुत शॉर्ट था, एज वेल एज जो हमारा ये अभी हॉल है वो भी थोड़ा सा ये होने की वजह से वी कुड एकोमोडेट अराउंड 10 to 15 पीपल, चिल्ड्रन फ्रॉम ईच स्कूल। और गवर्नमेंट स्कूल से, दनीकुंजा स्कूल से आए, फिर मी बागान स्कूल से आए, सेकेंडरी स्कूल से, फिर हिजा स्कूल से कुछ आए, सिरो स्कूल से आए। तो गवर्नमेंट स्कूल से भी ये है। तो हमारा इंटेंशन यही है कि अभी एक बेसिक इंट्रोडक्टरी राउंड करके देन श्योरली इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर, ये जो प्रोग्राम से कितना इफेक्टिव हुआ है, कितना मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया है अभी तक? अभी तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारा ऐसा फर्स्ट टाइम है, एंड अभी हमने जस्ट प्रोग्राम किया है। तो फीडबैक्स, सजेशंस वगैरह अभी रहेंगे। स्टूडेंट से भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे कि उनका इसमें व्यूज़ क्या है, प्रोग्राम कैसा था। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग बोल सकेंगे कि सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, बट इट इज़ अ गुड बिगिनिंग, आई वुड से। थैंक यू सर। माय नेम इज़ ताकेर लालिंग। हम ACGF का ट्रेजरर है।
इस 2022 to 2025 का टेन्योर का। ये हम लोग ऑलरेडी SCGF का सिल्वर जुबली भी मना चुका है, हम लोग का इतना पुराना है। और जिस ये टेन्योर हम लोग जब से हम लोग टेकअप किया है तब से हम लोग अभी तक बहुत सारा कार्यक्रम को बहुत सारा प्रोग्राम भी कर चुका है, जैसे कि हम लोग काउंसलिंग करना हो या मेरिटोरियस स्टूडेंट को अवार्ड देना हो या किसी भी टाइप का हम लोग का एकेडमिक करियर का जो स्टूडेंट लोग का जो ज़रूरी है वो सब हम लोग अभी तक करते आ रहा है। जैसे कि लास्ट प्रीवियस ईयर में हम लोग कई सारा मल्टी डिसिप्लिन में हो रहा है, ना कि पहले टेन्योर में या पहले में ख़ास करके ये एकेडमिक करियर का और एकेडमिक मेरिटोरियस का उसमें एम्फेसाइज करता था। लेकिन अभी इस बार का टेन्योर में we have decided that we will do something different and something new and something as per the requirement। अभी जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे हम लोग का ज़रूरत भी अलग अलग हो रहा है। तो पहले हम लोग खास करके फोकस ऑन द एकेडमिक करियर ओनली। अभी हम लोग क्या किया, लास्ट टाइम हम लोग स्किल डेवलपमेंट में भी किया, उसको भी हम लोग कंडक्ट किया। और उसमें और जितना टाइप का हम लोग कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है या कुछ खास करके एस्पिरेंट लोग का कुछ ज़रूरत पड़ता है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिटन क्वालिफाई हो चुका है, इन लोग को मॉक टेस्ट हम लोग कराता है, मॉक ओरल टेस्ट कराता है या इंटरव्यू कराता है, उस टाइप का भी हम लोग बहुत बार कर चुका है। और इसमें हम लोग नॉट ओनली इन द एकेडमिक पार्ट, हम लोग जैसे स्किल डेवलपमेंट की जैसे बताया, और आज जैसे हम लोग ये लेटेस्ट अभी जैसे हम लोग बोल रहे ज़माना का साथ में चलना पड़ेगा। हम लोग ना कि एक ही चीज़ को पकड़ के एक ही चीज़ को करते रहेगा, ऐसा नहीं होना है। जैसे जैसे हम लोग का टाइम जाता है, जैसे जैसे हम लोग का पैशन जाता है, पैशन जैसे कि हम सभी जानता है, एक ज़माना था बेल बॉटम होता था, एक ज़माना था स्कर्ट का या मैक्सी का, इस टाइप का होता था। अभी जनरेशन टू जनरेशन हम लोग का पैशन भी चेंज होते जा रहा है। इसलिए हम लोग SCGF भी हम लोग ने डिसाइड, हम लोग का टेन्योर, हम लोग का एग्जीक्यूटिव बॉडी ने डिसाइड किया कि जो पैटर्न पहले चलते आ रहा था उसको रखते हुए फिर भी हम लोग अदर देन दैट ऑल्सो हम लोग कवर कर जितना कर सकता है हम लोग करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे कि अभी आजकल का ज़माने में IT ज़माने में अगर हम लोग पहले ज़माना का करते रहेगा तो फिर हम लोग छूट जाएगा। इसलिए हम लोग ज़माना का साथ चलना पड़ेगा, दुनिया का साथ चलना पड़ेगा। अभी जो पैशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उस फील्ड में भी हम लोग ये कोशिश किया है। आज जैसे ये प्रोग्राम है हम लोग का जूनियर रोबोटिक एंड बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टीम में हम लोग आज प्रोग्राम कर रहा है। जैसे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है अभी चल रहा है, अगर इसको हम लोग एम्फसाइज नहीं देता है, इसको अभी हम लोग टेकअप नहीं करता है, तो हम लोग का स्टूडेंट लोग एस्पिरेंट लोग पीछे रह जाएगा। तो जैसे कि अभी हम लोग प्रोग्राम में भी कई लोग बहुत स्पीकर लोग ने बताया कि मतलब इसका साथ नहीं चलेगा तो हम लोग तो ऑटोमेटिक स्टैंड मतलब बैकवर्ड हमारे बैक गियर में जा रहा है। इसलिए हम लोग ज़माना का साथ में चलने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी जो लेटेस्ट जो बच्चा लोग को ज़रूरी है, लेटेस्ट अभी जो हम लोग का स्टूडेंट लोग को ज़रूरी है, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ हम लोग का SCGF का तरफ से। और अभी रिसर्च पर्सन लोग ने जितना बताया है और रिसर्च स्पीकर लोग जितना बताया है उतना तो हम लोग भी खुद मालूम नहीं है, लेकिन रिसर्च पर्सन का तरफ से जितना हम लोग मालूमात कर सका, और स्टूडेंट लोग भी बहुत सारा स्टूडेंट लोग आया है। अभी एवरी प्राइवेट स्कूल फ्रॉम जीरो वैली से आया हुआ है, और जितना भी हम लोग का ये गवर्नमेंट स्कूल से उसमें भी मैक्सिमम आया है। जैसे दनियाकुनिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से आया है, मीन बागान सेकेंडरी स्कूल से आया है, और सरो मिडिल स्कूल से भी आया, होंग सेकेंडरी स्कूल से भी आया है। इस तरह से बहुत सारा स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट किया है। इसमें डेफिनेटली आई डू बिलीव दैट कुछ ना कुछ तो यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो ये जैसे कि अभी हम लोग बताया है, ये दिस टाइप ऑफ सेमिनार, दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप, दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज कंडक्टिंग फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यही फर्स्ट टाइम है कि रोबोट का टॉपिक को लेके हम लोग वर्कशॉप किया है, वो भी जीरो में। सो हम लोग लकी इनफ दैट हम लोग जैसे ये इस फील्ड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो इंफॉर्मेशन को हम लोग शेयर कर रहा है,
वो भी हम लोग का जीरो में और हम लोग का अपना कम्युनिटी को शेयर कर पा रहा है, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और लकी इनफ हम लोग रिसर्च पर्सन लोग भी विलिंगली हम लोग का यहाँ में आके हम लोग को बच्चा लोग को ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। और हम लोग नॉट ओनली दैट, आने वाला दिनों में भी जैसे अभी हम लोग बहुत सारा हम लोग एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है, APCS हो गया, APS हो गया, वो सब जितना भी अभी एडवर्टाइजमेंट हम लोग दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी हम लोग वी आर प्लानिंग टू हैव ए सम काउंसलिंग टाइप हो गया या कुछ जिस टाइप का हम लोग हेल्प कर सकता है कैरियर गाइडेंस फोरम का तरफ से। तो इसलिए उसको भी हम लोग डिसाइड कर रहा है कि अभी किस टाइप का हम लोग चौकआउट करेगा। तो क्योंकि कैंडिडेट कितना होगा, एस्पिरेंट कितना होगा, अभी बहुत सारा मल्टी पोस्ट निकला है, और ये MTS पोस्ट ग्रेड से लेके ऑफिसर लेवल तक का निकला है। उसमें लेवल वाइज में हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग उसके लिए भी पता नहीं कैरियर गाइडेंस फोरम का तरफ से हम लोग प्रोग्राम करने वाला है, बहुत जल्दी करेगा। इसलिए इसमें ये जैसे कि हम लोग का जो शुरुआत से लेके कुछ लोग फॉर्म फिलअप करने में भी कुछ लोग दिक्कत होता होगा, कुछ लोग इंफॉर्मेशन करेक्ट सही ढंग से नहीं मिला होगा, कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देखा होगा, उन सब के लिए भी हम लोग मदद करने के लिए हम लोग प्रोग्राम चौकआउट करने वाला है। अभी बहुत जल्दी आप लोग दिखाई देगा, आप लोग बहुत जल्दी मिलेगा कि हम लोग का पता नहीं कैरियर गाइडेंस फोरम का तरफ से हम लोग जो अभी लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है उसको हम लोग प्लानिंग वे में, प्रॉपर वे में प्लानिंग करके हम लोग उसको एक प्रोग्राम हम लोग चौकआउट करेगा। लास्ट टाइम भी देखिए हम लोग कई सारा स्टूडेंट एस्पिरेंट को जो रिटन क्वालिफाई हुआ, जो प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हुआ, उन लोग को हम लोग पूरा सबको तो स्पॉन्सर नहीं कर पाया, लेकिन उसको स्क्रूटनाइज करके ईटानगर में सोम ग्रुप, जीरो में सोम ग्रुप, उसको भी हम लोग स्पॉन्सर किया है, और उन लोगों का कोचिंग फी को भी स्पॉन्सर किया है। बहुत सारा लोग उसको सेलेक्ट भी हो गया, तो ईटानगर से भी, जीरो से भी कई सारा लोग क्वालिफाइड हुआ और अभी जॉब में है। तो इसी रीति से हम लोग जितना भी हम लोग कोशिश करता है उसमें से कई सारा लोग को बेनिफिट हुआ है, और आने वाला दिनों में भी हम लोग इससे भी ज़्यादा, और जॉब में तो मदद करने ही वाला ही है, लेकिन अभी जैसे हम लोग क्लास 12 पास हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसको हम लोग ये कैरियर गाइडेंस भी देने के लिए भी हम लोग कोशिश करेगा। कि अभी बहुत सारा पेरेंट लोग भी हम लोग को खबर ले रहा है, बहुत सारा पेरेंट लोग भी पूछता चल रहा है कि अभी हमारा बच्चा को क्या पढ़ाना है, कौन सा लाइन में भेजना है, कौन सा प्रोफेशन में जाने से अच्छा है, उसको भी हम लोग अभी चिंता कर रहा है कि हम लोग भी उसको कुछ ना कुछ हम लोग गाइडेंस देने के लिए कोशिश करेगा। अभी देखिए हम लोग, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, मैं गार्जियन हूँ, या मेरा भी कई सारा स्टूडेंट है, और मेरा अपना परिवार में भी मेरा बेटी लोग भी अभी क्लास 12 पास है। तो उसके लिए भी हम लोग भी चिंता है कि अप्रोप्रिएट कॉलेज, ना कि फ्यूचर में ग्रेजुएट हो गया, मास्टर डिग्री भी हो गया, फिर भी अनएम्प्लॉयड, PhD डिग्री हो गया, फिर भी अनएम्प्लॉयड। तो उसको अगर हम लोग राइट डायरेक्शन, राइट काउंसलिंग करता है, राइट प्रोफेशन चूज करता है, तो फ्यूचर में वो गवर्नमेंट सर्विस मिलो तो भी ठीक है, नहीं मिलो तो भी दे कैन सेल्फ एम्प्लॉयड, दे कैन इंगेज इन एनीवेयर। इस टाइप का हम लोग ये टाइम का मुताबिक, सिचुएशन एंड टाइम का डिमांड का मुताबिक हम लोग उसको काउंसलिंग करना है। जैसे हम लोग लास्ट टाइम का काउंसलिंग में भी मैंने बताया था, उसमें भी बोला है कि नोबडी शुड बिकम ए अनएम्प्लॉयड आफ्टर ग्रेजुएशन। सो ऐसा कुछ, बहुत कुछ ऐसा है कि सी वन थिंग, everybody cannot become an officer, everybody cannot become a doctor, everybody cannot become an engineer. So someone should become a the paramedical staff, someone should become a technician, someone should become some expert in any field ना। अभी तो जैसे अभी आजकल तो अरुणाचल में भी फिल्म इंडस्ट्री का भी आ गया, फिल्म इंडस्ट्री भी सेटअप होने लग गया, और इस फील्ड में भी अभी लास्ट टाइम भी हम लोग देखा है, एडवर्टाइजमेंट भी देखा है, उसमें भी रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, वो भी एक प्रोफेशन है ना। तो इस टाइप का हम लोग नॉट ओनली इन द डॉक्टर इंजीनियर उसमें फोकस नहीं रहना है, हम लोग मल्टी में अभी जाना है। तो जैसे कि अभी कई लोग रॉन्ग चूज होने का वजह से, प्रोफेशन में रॉन्ग चूज होने का वजह से कई सारा लोग वेल क्वालिफाइड होते हुए भी अभी अनएम्प्लॉयड है। तो इसलिए हम लोग ऐसा गाइडेंस देना है, ऐसा प्रोफेशन चूज करना है
ताकि फ्यूचर में अनएम्प्लॉयड ना हो। तो ऐसा बहुत सारा सेक्टर है, उसको बता ये अभी तो पूरा नहीं बता पाएगा, लेकिन काउंसलिंग का डे में हम लोग एक एक करके आपका स्टूडेंट का इंटरेस्ट को भी सुनना पड़ेगा। तो जिसको भी हम लोग काउंसलिंग करेगा, लेकिन स्टूडेंट सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शुड इंटरेस्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। और इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम लोग ज़बरदस्ती बेच के भी फिर फ़ायदा नहीं है। उसका इंटरेस्ट को भी देख के उसका मुताबिक काउंसलिंग करना है। इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ आपतनी कैरियर गाइडेंस फोरम हम लोग का पेरेंट्स लोग को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स और गार्जियंस लोग को, कि बच्चा लोग को देखिए, अभी हमारा स्टूडेंट लोग बच्चा लोग भी इन लोग का इंटरेस्ट अलग है, हम लोग का पेरेंट का इंटरेस्ट अलग है। इसलिए फोर्सफुली तुम डॉक्टर ही बनना है, तुम इंजीनियर ही बनना है, तुम यही बनना है, ऐसा करके फोर्स नहीं करना है। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, देन वी कैन गाइड। तो अदर ऑप्शन भी बता सकता है, ऐसे है ऐसा है, ऐसा भी ऑप्शन है, तो आपको चुनना है। इस टाइप का हम लोग फ्यूचर में हम लोग करने वाला है, और आने वाला दिनों में बहुत जल्दी आप हम लोग का ये आपतनी कैरियर गाइडेंस फोरम का तरफ से ये प्रोग्राम को सुनने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।